Hello students, I hope you understand completely the profit and the loss topic which we have done in the previous video. Now let us start with the next topic, that is sale tax and value added tax, which is known as VAT. In short, it is called VAT, that is value added tax. Okay, let us take two examples to understand what is the sale tax and how this is counted and how this is added. Actually, sale tax and value added tax is also added in the cost price. Alright, so I have selected two examples for you so that you understand how the sale tax or the value tax to be used. Okay, when you purchase any item from the market, you must pay some tax. Government charges some tax on every item that we purchased. Okay, for the shopkeeper as well, he also has to pay some tax to the company or from where the things he brought. Okay, so हमें वो सब चीजों पे टैक्स देना पड़ता है, चाहे हम परचेज कर रहे हैं या शॉपकीपर परचेज कर रहे हैं. So we have to pay some tax. So let us start to understand the first example. This is the example number 8 of value added or sale tax. The cost of a pair of roller skates at a shop was ₹450. The sale tax charged was 5%. Find the bill amount or the amount which we have to pay to purchase the roller skates. हमें क्या करना है? The cost of pair of roller skates का cost है हमारे पास 450. ये cost item है जो उसके ऊपर हमें मिल रहा है, ये कॉस्ट प्राइस है. द सेल टैक्स मतलब जो वो बेचेगा शॉपकीपर हमें उस पर वो टैक्स लगा के हमें देगा. कितना टैक्स वो हमसे लेगा? 5%. 5% किसका? कॉस्ट प्राइस का. ऑलवेज ये किस पे यूज होगा? कॉस्ट प्राइस पे. जितने का अमाउंट है, जितने का वो थिंग आप जो परचेज कर रहे हो वो है, उस पे उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगता है. सो इस पे टैक्स है 5%. फिर हमारे पास बिल बनेगा. सो इसका सॉल्यूशन करते हैं. क्या सॉल्यूशन होगा इसका? सबसे पहले लिखना है हमने कॉस्ट प्राइस. द कॉस्ट प्राइस ऑफ रोलर स्केट्स is equal to ₹450. This is the cost price of the roller skates. Now, what is the tax that is charged on the purchasing of the roller skates? That is 5%. Now, 5% sale tax. 5% sale tax at ₹450. इसमें 5% टैक्स लग रहा है, तो कितना टैक्स हो जाएगा हमारे पास? हमने कितना टैक्स पे करना होगा? इसका 5% निकालो. 450 का 5%, दैट इज 5% ऑफ 450. ये हमने इसका फाइंड आउट करना है. जब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, आफ्टर दैट जो हमारे पास अमाउंट आएगा वो टैक्स होगा जो हम इसके लिए पे कर रहे हैं. ऑलराइट, दैट इज अंडरस्टैंड हाउ वी कैन यूज the text. I hope you understand the question. That is from your book. You can use your book to read the question. All right. So let us follow up the solution. 5% of 450. 5% का मतलब क्या होता है? 5/100. Of means multiply 450. All right. So 5% means 5/100 multiply 450. कैंसिल आउट कर दो. ₹22.5. ये उसमें टैक्स लगा. जो हमने चीज परचेज की, रोलर स्केट हमने परचेज किए, उसका बिल हमारे पास अमाउंट था रोलर स्केट्स का 450. उस पे हमें टैक्स देना पड़ता है. टैक्स है उस पे 5%. इसका मतलब हमें 22.50 ये रुपीस एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे. सो हमारे पास टोटल अब उसके हमारे पास जो बिल अमाउंट है, यानी बिल हमारा कितने का बनेगा? सो बिल अमाउंट, हमें बिल अमाउंट बताना है. सो हमारा बिल जो बनेगा, जो हम शॉपकीपर को पे करेंगे, दैट इज 450 प्लस 22.5, दैट इज कॉस्ट प्राइस प्लस
टैक्स, ये हमारे पास उसका, दिस इज एक्चुअली पॉइंट, sorry for that, this is 5 0, when you add this in this, I forgot this 0 also, then after 7, then 4, that is 472.50, because this is 450, I forgot that 0, actually it is a 450 and 22.50, so the bill amount, that is the cost price plus sale tax is equal to 472 rupees 0.50 rupees. So our answer is this one, that is 472.50 rupees. Alright, I hope you understand how we can find out the cost price of the roller skates is given, 5% sale tax is given, tax always used on the cost price, इसका 5% निकालो, 5% का मतलब 5/100 into 450, जो अमाउंट आएगा उसको बिल में यानी कॉस्ट प्राइस में ऐड कर दो, तो हमारे पास ये वो अमाउंट हो जाएगा जिसका बिल बनेगा, जो हमें उसको पे करना होगा। Alright, now come towards one more questions of similar pattern, that is sale tax or value added tax. Both are the same things. Actually previously it is called sale tax, now it is called VAT or value added tax. Now the example is Vahida bought an air cooler for rupees 3,300 including a tax of 10%. Find the price of the air cooler before VAT was added. So let us understand this question and try to solve step by step. Alright. The question given is Vahida bought an air cooler for rupees 3,300. Okay. The cost price of air cooler is equal to rupees 3,300. And after that we लिख रही है including a tax of 10%. Now this price is including tax of 10%. इसका मतलब उसका ओरिजिनल प्राइस तो अलग था, उसमें 10% टैक्स भी ऐड कर दिया गया, यानी ये तो टोटल बिल बन गया उसका, दिस इज बिल अमाउंट, नॉट द कॉस्ट प्राइस प्रीवियसली, इसके अंदर टैक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है. सो वहीदा बॉट एन एयर कूलर फॉर रुपीज 3,300 इंक्लूडेड टैक्स, यानी टैक्स ऑलरेडी इसमें लगा दिया गया है. फाइंड द प्राइस ऑफ एयर कूलर बिफोर वैट वाज एडेड, हमें वो प्राइस निकालना है जो इसका अमाउंट ये टैक्स लगाने से पहले था, यानी ये तो बिल अमाउंट हो गया, हमें वो अमाउंट निकालना है जो पहले था, ओरिजिनल प्राइस इसका था. सो वहीं से स्टार्ट करते हैं. लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ एयर कूलर, ओरिजिनल प्राइस का मतलब क्या हुआ, द प्राइस विदाउट टैक्स. ओके, हम इसके लिए लिख भी सकते हैं यहाँ पे द प्राइस विदाउट टैक्स, आप ब्रैकेट में इसके लिख भी सकते हो द प्राइस विदाउट टैक्स, आप ये भी लिख सकते हो इसके लिए. ऑलराइट, प्राइस विदाउट टैक्स. तो हमने ये मान लिया, लेट किया तो हमने मान लिया एक्स. जब हम कोई चीज सपोज करते हैं हम उसे वेरिएबल फॉर्म में सपोज करते हैं. लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ एयर कूलर इज इक्वल टू एक्स, ये उसका ओरिजिनल प्राइस था. अब टैक्स कितना लगा उस पर, 10% टैक्स लगा. नाउ 10% वैट ऑन एक्स. एक्स पे कितना वैट लग गया, एक्स उसका ओरिजिनल प्राइस था, उस पर टैक्स लगा 10%. सो 10% ऑफ एक्स हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज 10/100 मल्टीप्लाई एक्स. ये वैल्यू आ गई, उसके टैक्स पे कितना टैक्स पे हुआ. अब ये ओरिजिनल प्राइस प्लस में हम इसका टैक्स लगा दें तो ये प्राइस हमारे पास वो हो जाएगा जो आफ्टर टैक्स है, जो हमें ऑलरेडी गिवन है. ये ओरिजिनल प्राइस में 10% टैक्स लगा दिया. जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये अमाउंट आ जाएगा जो आफ्टर दैट टैक्स बनना चाहिए. सो आफ्टर दिस, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. आफ्टर दैट दिस इज द ओरिजिनल प्राइस, ओके, प्लस ये आ गया टैक्स.
दैट इज टैक्स कितना लगा है 10x अपॉन 100, ये वैल्यू आ गई जो वैट लगा है, और इन दोनों को मिला के जो अमाउंट है वो हमें ऑलरेडी गिवन है। देखो हमें क्या दिया हुआ है, वहीदा ब्रॉट एन एयर कूलर फॉर ₹3300 इंक्लूडिंग टैक्स। इसका मतलब अगर ओरिजिनल प्राइस हमने x माना, उसमें हमने 10% का वैट लगा दिया, तो हमारे पास उसका अमाउंट बन गया 3300। ओके, नाउ अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्या बनेगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 100x प्लस 10x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 3300, राइट। इसे ऐड करो, दैट इज 110x अपॉन 100 इज इक्वल टू 3300। इन दोनों चीजों को उधर ट्रांसफर कर दो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3300 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 110। यहां से हमें वो अमाउंट आ जाएगा जो हमने ओरिजिनल इसका लिया था, ओरिजिनल प्राइस जो था। इसे कैंसिल आउट करो, क्या आता है हमारे पास, ये कैंसिल हो गया इससे, दैट गिव्स अस 30। ऑलराइट, 30 इंटू दिस, दैट इज 3000 रुपीज। तो हमारे पास आ गया ओरिजिनल अमाउंट 3000 रुपीज। ऑलराइट, ये वो अमाउंट है जो टैक्स के बिना था, यानी हमारे पास ओरिजिनल अमाउंट 3000 था, उस पर 10% का टैक्स लगा, टैक्स लगने के बाद उसकी अमाउंट होगी 3300। तो क्वेश्चन दोनों तरह से मोल्ड होके आता है। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि क्वेश्चन में आपको सिर्फ टैक्स इंक्लूड करना है, आपको इंक्लूडिंग अमाउंट आ रहा है तो आपको टैक्स आपको फाइंड आउट भी करना, आपको टैक्स भी फाइंड आउट करना आ सकता है, आपको उसका प्रीवियस अमाउंट भी फाइंड आउट करना आ सकता है। सो बट आपने करना क्या है, कॉस्ट प्राइस में टैक्स ऐड करके बिल अमाउंट बनाना है। सो बिल अमाउंट अगर दिया है तो ओरिजिनल प्राइस भी निकाल सकते हैं। वन मोर टाइम अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लिखा जो हमें दिया हुआ था, कॉस्ट प्राइस ऑफ द एयर कूलर 3300। ओके, बट दिस इज इंक्लूडिंग टैक्स ऑफ 10%। ऑलराइट, नाउ लेट द ओरिजिनल प्राइस जो हमें फाइंड आउट करना है हमने उसको मान लिया। लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ एयर कूलर इज इक्वल टू x। नाउ द 10% ऑफ वैट ऑन x, दैट इज 10 अपॉन 100 इंटू x, दैट इज ये आ गया उसका 10%, ये अमाउंट है। अब x हमें नहीं पता इसलिए हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, लेकिन हमारे पास x की जब वैल्यू पता लग जाएगी तो अमाउंट पता लग जाएगा। तो हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप यहां लिख भी सकते हो according to given statement, according to given statement हमारे पास इसकी इक्वेशन क्या बन गई, गिवन वैल्यू ओरिजिनल प्राइस प्लस टैक्स, और हमें इसकी अमाउंट कितना दिया गया है 3300। तो हमारे पास कितना अमाउंट आ गया टोटल, जब हम दोनों को एलसीएम लेके ऐड करेंगे 110x डिवाइडेड बाय 100, x की वैल्यू निकालनी है, राइट साइड पे लेके जाओ, आ गया 3000। सो क्वेश्चन दोनों तरह से मोल्ड होके आ सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सेल टैक्स एंड द वैल्यू एडेड टैक्स। सो वी नाउ नेक्स्ट we further do the questions of the exercise.